There is no greater agony than bearing an untold story inside you. A quote by Maya Angelou explains the theme of the story. This story is based on a boy named Arman, who is trying to come out to his fellow classmates. The reaction and thoughts scares him, but his best friend and the teacher are supportive. This short film shows the point of view of our society. Arman keeps staring at his teacher. Understood? While the teacher Okay. is just sitting at the desk working on some paperwork, and Anjali, his best friend, looks at him and frowns. What the hell are you looking at? ऐसे सर को क्यों घूर रहा है? क्या मैं किसी को नहीं घूर रहा हूँ। चल अपना काम कर। नहीं भाई, मैं तुझे कितने दिन से देख रही हूँ। तू बहुत, कैसे बोलूँ मैं, बहुत अलग नज़र से सर को देख रहा है। कहना क्या चाहती है तू? That mean I am gay? First of all, I never said that you are gay. And second of all, are you gay? तू गे है तो क्या? तू मेरा अरमान है और हमेशा मेरा अरमान ही रहेगा, समझा? Thank you यार। Soon break time comes. Anjali leaves the class for some reason. Seeing this, Akansha starts teasing Arman. ये देखो अरमान आ रहा है। अरमान सुन ना, हमें पता चला है तू गे है। तुम जैसे लोगों के कारण हमारा नाम खराब है, गंदी नाली के कीड़े। What the hell is happening here? देखो अरमान क्या बोल रहा है। अरमान क्या हुआ? मैम आई एम गे। Shut up! ये कैसी बात कर रहे हो तुम? आइंदा मेरे सामने या किसी के भी सामने ऐसी बात नहीं करना। बट मैम। Shut up! मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से कांटेक्ट करना पड़ेगा। Teacher Devashri comes into staff room disgusted. प्राचीना, आपको पता है आज ए सेक्शन में क्या हुआ? क्या हुआ? वो अरमान है ना, वो है, वो क्या? वो गे है। क्या? Oh my God! क्या हुआ प्राचीना? क्या बात है? क्या बताऊं आस्था मैम, आजकल के बच्चे इतने वाहियात है, छी 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 छी, सोच कर भी घिन आ जाती है। क्या हुआ? अरे वो अरमान है ना सेक्शन 8 का, वो हाँ ये है। Listening to the conversation in the staff room, teacher Asta felt concerned. Just when her lecture was there, teacher Asta entered the classroom and sat on the chair. Settle down. Come on, fast. Arman comes after her and tries to sit with Aditya. हे फैग, मेरे पास मत बैठ, पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ बैठ के। चल हट यहाँ से। ए, हिम्मत है तो मेरे से बात करना। Stop it, you three. Why are you fighting about this? Just sit somewhere else. बट मैम देखो ना ये कैसे बोल रहा है। हाउ कैन ही कॉल माय बेस्ट फ्रेंड अ फैग? Fag? Fag मतलब? मैम, fag मतलब गे। हाँ, गे। So today's topic is homosexuality. Can anyone tell me what is homosexuality? चिकने। मिठे। Being attracted to same gender. ग्रेट जॉब अरमान। हम होमोसेक्सुअल, गे, लेस्बियन उनको बोलते हैं जो सेम जेंडर के साथ अट्रैक्ट होते हैं। मैम, बट ये सब तो नॉर्मल नहीं है ना? अच्छा, वो गे है जस्ट बिकॉज उसे लड़के पसंद है, तो इस हिसाब से फिर तुम भी हुई चिकनी, राइट? पर मैम हम तो जस्ट गे या फैग बोल रहे हैं,
इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम होमोफोबिक हो गए. हम जस्ट सरप्राइज्ड है. दिस इज आवर फर्स्ट टाइम सीइंग एनी गे पर्सन. And I don't blame you. You all have been raised and brought up in that way. मतलब marriage between man and woman only. And their sole purpose is to bring children in this world so that their family name won't die. Tell me, who are you or who am I to judge or label others? None. We are nobody. And always remember, loving someone should never be labeled. It doesn't matter if you are gay or I am straight. Love is the most pure thing in this world. And we are doing the worst type of labeling. और तुम सबको ये पता है क्या, बहुत सालों पहले, even before wars, AB, BC, etc., homosexuality was very common. Some questionable acts were there, like slaves, but that's a different topic. In fact, the term homosexuality and heterosexuality didn't even exist. The term were introduced just some years ago. And do you know why? Because humans always like to label others. हम वो हैं जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है, बड़े लाड से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है, कभी कभी शरारतों पर मार दिया जाता है, और फिर हमारे रोने पर हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसा रोया थोड़ी जाता है, तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद किया जाता है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है और तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से बता दी जाती है, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से समझ ली जाती है, तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंस दिया जाता है और तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है। सारे लड़कों में हमें भी गिन लिया जाता है, हम कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि सोसाइटी द्वारा जज कर दिया जाता है।